بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں قائم احتشام۔ ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمیشہ ہی خواتین کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہا ہے۔ کبھی ان کی شکایت ہوتی ہے کہ عملے کا ہمارے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، کبھی ان کی شکایت ہوتی ہے کہ گرمیوں میں ہمیں دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ان کی شکایت ہوتی ہے کہ شدید سردی میں ہمیں کھلے آسمان تلے کھڑا ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آج انہی شکایات پر بات چیت کریں گے، خواتین سے جانیں گے کہ ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، اور جو حکومت نے ہدایات جاری کی ہے انتظامیہ کو کہ آپ نے خواتین کو سہولیات فراہم کرنی ہیں، کیا وہ کی جا رہی ہیں یا نہیں۔ آج کے پروگرام میں اس معاملے پر بات چیت کریں گے، خواتین سے بات چیت کریں گے، تو چلتے ہیں پھر خواتین کی جانب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی تھیں، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس نوعیت کے جو ہے وہ مسائل کا ان کو یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا کس وقت سے یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور کیا کیا مسائل کا؟ صبح 8 بجے سے؟ ہاں جی۔ سردی میں آپ کو بلا لیا؟ ہاں جی، 8 بجے آئے۔ اور پیسے وغیرہ کوئی ملے ابھی تک؟ نہیں ملے نہیں، ٹڈیاں نے داخل کرائے سی، کاٹ دراج کرایا سکا، ورنہ کوئی پیسہ نہیں ملیا۔ اچھا، جو بزرگ ہیں، جو بزرگ خواتین یہاں پر آتی ہیں، ان کو بٹھانے کے لیے ایک الگ سے جگہ کا کہا ہوا ہے حکومت نے، وہ جگہ تک بھی ان کے پاس ہے نہیں ہے؟ آپ کو اندر ہی نہیں لنگن دیتا، اندر ہی نہیں لنگن دیتا، اندر ہی نہیں جانے دیا آپ کو؟ نہیں اندر ہی نہیں جانے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ اس وقت خواتین کچھ موجود تھیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اندر بھی داخل ہونے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ذریعہ روزگار کوئی اور بھی ہے؟ آپ کے ظاہر سی بات ہے بیٹوں کے پاس؟ نہیں، کوئی نہیں خرچہ دینا، تینوں چ کوئی خرچہ نہیں دینا۔ 3 بیٹے ہیں آپ کے؟ ہاں جی۔ نہیں دیتے آپ؟ نہیں، آ کے پوچھ سکتے۔ آپ کا جو گزر بسر ہے وہ اسی پہ ہی، انہی پیسوں پہ جو ملتے ہیں بے نظیر؟ میں اپنی دھی کو لے آؤں، بیٹی کرو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے کب سے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بلایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتنا کو ٹائم آپ کو یہاں پر ہو گیا ہے؟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਢੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ بار بار چکر لگوائے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ابھی تک۔ اچھا، مجھے آپ بتائیں کہ کیا مسائل ہیں آپ کو؟ مسائل یہ ہیں کہ بیٹے 3 ہیں، 2 کی شادی ہو گئی، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے ایک نشہ کرتا ہے، وہ پیسہ کوئی نہیں دیتا گھر پہ۔ ٹھیک ہے، بہت پریشان ہوں میں، کافی دفعہ آئی ہوں میاں، میرے کو 14واں سال ہے فوت ہوئے کو، لیکن یہی بات ہے کہ گھر اپنا ہے تو گھر کو کیا کریں، روٹی تو پیٹ مانگتا ہے نا، تو میں بڑی پریشان ہو کے آ جاتی ہوں، پھر واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ پیسے نہیں دیتے؟ نہیں دیتے۔ کیا وجہ کیا ہے آخر؟ سب کیا وجہ مجھے نہیں پتہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت خاتون ایک موجود ہیں، اور وہ اب دیدہ ہو گئی ہیں کہ میں ظاہری سی بات ہے مالی مشکلات ہیں، جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو ہے وہ روزگار انسان کے لیے ڈھونڈنا جو ہے، یا ایک عزت کا وقت بسر کرنا، وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ صبح سے کتنے بجے سے آپ یہاں پر، چونکہ بہت سردی ہے؟ 8 بجے سے آئی۔ 8 بجے سے آئی ہوئی ہے، اور ظاہری سی بات ہے جو ذرا بزرگ خواتین ہیں ان کو اندر بٹھایا جا رہا ہے، آپ کو کوئی؟ نہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم جب سے آئے ہیں ادھر۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش بھی کروں گا وہ آپ کو دکھا دے کہ یہاں پر جو ہے وہ خواتین بیٹھی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی فیسیلٹی یا کوئی بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں بنائی گئی ہے۔ حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ظاہری سی بات ہے اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ ایسے نظم و ضبط قائم کیا جائے کہ خواتین کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ پیسے ملیں۔ نہیں، مشکلات ظاہری سی بات ہے، حالات بہت مشکل۔ میں کیا کروں، وہ تو بیٹوں کا ہے، میرا تھوڑی ہے وہ۔ نہیں، بیٹوں کی طرف سے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بیٹوں کی طرف سے کوئی آپ کو مالی معاونات یا مالی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، پریشانی کی حالت میں آتی ہوں، ایسے ہی ہو کے چلی جاتی ہوں، گھر پہ چلی جاتی ہوں، پھر اللہ سے آرزو ہے، اللہ بھی نہیں سنتا۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے جو بیٹے ہیں، وہ بیٹے بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پاتے؟ نہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کے مزدوری کرتے ہیں، وہ مجھے دیں کہ اپنے بچوں کو پالیں۔ یہاں پر آپ کو یہ جو ابھی موجودہ قسط آئی ہے، اس میں آپ کو پیسے نہیں ملے؟ میرا اندراج ہی نہیں ہوا، میں پہلے بھی آئی تھی، ایسے ہی ٹوکن دیا، پھر گھر چلی گئی، پھر آج، پھر کل پرسوں بھی آئے، سسٹم بند ہے، آج آئی ہوں، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، خواتین سے جو ہے وہ ہمارا بات چیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بتائیں کب سے آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں؟ بھائی صبح 8 بجے سے۔ پیسے نہیں ملے آپ کو؟ نہیں بھائی،
ਬੇਵਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਫੋਤ ਹੋਇਆ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ तो क्या आपको कहा क्या गया है कि आपके अभी आए नहीं हैं या ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ आप बात ही नहीं करते आपसे? भाई सुनते ही ਬੱਚੀ नहीं है अच्छा, आप मुझे कितने बजे से आप लोग ਇੱਕ ਗੁੰਗੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਬੇਵਾ ਦੇ हमारे साथ इस वक्त खबर जी 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 ਬੇਟਾ ਬੇਵਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 12000 ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ नहीं मिले। कोई आपसे पैसों की डिमांड की गई है कि अगर हमें पैसे दें तो हम आपका काम करवा देते हैं? नहीं कोई नहीं। इस तरह की, लेकिन आपको पैसे अभी तक नहीं मिले? हाँ जी मिले ही नहीं। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੀ साल डेढ़ हो गया है, समझ लो ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਿਲੇ। अच्छा, अमले का रवैया कैसा है यहाँ पर जो खवातीन आ रही हैं? ऐसे भाई बातें नहीं करते हैं, दबके मारते हैं। चलो जाओ यहाँ से अभी चले जाओ। सुबह 6 बजे बुलाया है, 6 बजे आना जी। पहले आए चक्कर लगा के गए, उन्होंने भाइयों ने कहा भी 6 बजे आना। सुबह 6 बजे के आए बैठे हैं लाने में, अब कमरे अंदर गए हैं तो उन्होंने कहा जी 2025 से आना, 25 में अच्छा, आना। बुजुर्ग खवातीन के लिए हमने जैसा कि पहले भी बात की है, पहले बिठाया गया है या उनको बिठाकर जो है वहाँ से उठा दिया गया? नहीं, दबके मार के बाहर निकाल देते। अब कह रहे फिर साल बाद आना। ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ठीक है, ख़वातीन से हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही हैं। और ख़ातून हमारे साथ एक मौजूद थी, वो रो पड़ी और उनका कहना था कि हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। अगर इस वक्त मौसम की बात की जाए तो इंतहाई सर्द मौसम है यहाँ पर, और इसमें जो है वो बाहर ठंड में खड़े होना एक इंसान के लिए जो है वो नामुमकिन है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं जो बाहर खड़ी हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो अगर अंदर जाती भी हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे गाइडलाइन लेने के लिए, तो वो उनके जो है उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अभी जी 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 क्या 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 कहना चाह रही हैं आप? मैं भी भाई बेवार था, मेरी बच्ची मजदूर है, लेकिन कहते दोबारा दराज कराओ, लेकिन सुबह दे आए हैं, शिनाख्ती कार्ड फाड़ लिया, टोकन ही नहीं दे रहे। ठीक है, इनका कहना है कि हमसे जो है वो अंदराज के लिए हम दोबारा आए हैं, हमसे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ले लिए, लेकिन वो दोबारा हमारी जो है वो कोई बात नहीं सुन रहे। अच्छा, किसी से बात करने की कोशिश की आपने यहाँ पर? नहीं नहीं, असी तो जो सुबह दे आए हैं ऐसे ही बैठे हैं भाई। अच्छा, अमला आपके साथ रवैया? अंदर गए हैं अभी, चलो कोई गल बन जाएगी, लेकिन उन्होंने क्या टोकन लेके बाहर आओ, शिनाख्ती कार्ड जमा कर लिया, टोकन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, यही ਅਸੀਂ ਬੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ठीक है, ख़वातीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर हमसे जो है वो कार्ड लिए गए हैं, अगर हमसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, वो हमें जो है फिर हमारा जो मामला है, जो लीगल एक इशू चल रहा है हमारा, उसको आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन, ख़वातीन से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद ख़वातीन से जो है वो हम बातचीत का सिलसिला अपना आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे बताएं क्या मसाइल यहाँ पर आपको सामना करना पड़ रहा है? मैं कहनी बेवा, मैं बंदा मेरा कुत्ते ने कट्टिया सी मर गया, एक निशैया मुंडा मेरा, एक बीमार वा, ते एक बार तो ना दिहाड़ी दौड़ करदा, मेरे पैसे लगने आप चाहिए। सुबह कितने बजे से आई हुई हैं यहाँ पर? 8 बजे 8 बजे से? हाँ जी। और आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? नहीं, काट गया अंदर, अजे कुछ नहीं मिला, काट नहीं मिला, ना पैसे लगे, लो मेरे पैसे। ठीक है, इनका कहना है कि हमसे जो है वो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर हम महज उनके पास हम गाइडलाइन लेने के लिए जाते हैं कि हमें आगे बताएं कि क्या अब आगे जो है वो इसका प्रोसेस है, तो वो इसमें हमें डांटते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं, और इवन जो है वो बात धक्कम पेल तक भी आ जाती है। एक और इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। क्या मसाइल का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है? ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਈ ਆਈਆਂ 50-60 ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ देते हैं कि ਅਸੀਂ नगा लांगे, ਹੁਣ नगाया भी जान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसी ख़वातीन के जिनकी सिफारिश हो या कुछ इस तरह की, वो उनको पहले जो है वो दे दिए जाते हैं? नहीं, वो किसी से का फोन वगैरह आया तो फिर से सिफारिश चल जाती वैसे नहीं। ठीक, चलती है सिफारिश? हाँ जी। ठीक है, इनका कहना है कि सिफारिश जो है वो चलती है, और अगर वो कोई कॉल उनको करवा दें या किसी एक अहम शख्सियत की पर्ची उनको दिखा दें तो वो जाहिर सी बात है बात सुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है और कितने बजे आप यहाँ पे आई थी? मैं 7 बजे दी आई हूँ, सुबह दी भुखी थे आई, शिनाख्ती कार्ड फाड़ लिया, टोकन ही नहीं दे रहे।
सो आपसे शनाख्ती कार्ड ले लिया, टोकन नहीं दे? नहीं दे नहीं रही। क्या कह रहे हैं, कोई बात की आपने? मैं क्या अंदर गई हाँ भी दवो टोकन भाई, मैं सुबह दी आई हाँ, शुगर दी मरीज हाँ। कह रहे हैं कि नहीं दंदे आ, तुसी बाहर चलो, बाहर आके लाइन च बह जाते हैं, फिर इधर फिर दे दें। कोई अच्छा, बात ये हर दफा इनका ऐसा होता है या ये इस दफा? चक्कर लगा ले ऐसे ही है। अच्छा, इससे पहले जो अक्सात आई हैं, जो किस्तें आई हैं, उन पर भी ऐसा ही होता था? नहीं अगे मिल जाते सी, लेकिन दोबारा दराज करवाना सी, इस वास्ते आए हैं। अच्छा, इनका कहना है कि जो है वो जो इंतज़ामिया के अंदर बैठे हैं 8, 10, 15 अफराद, उनके पास हम जाते हैं, वो हमारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ले लेते हैं, लेकिन हमसे जो है वो दोबारा जो है वो कोई जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते। कितने बजे आप यहाँ पे आई हैं इतनी ठंड में, और मुझे बताएं कि क्या क्या मसाइल आपको जो है वो यहाँ पर आपको सामना करना पड़ रहा है? मैं तो जितनी दफ़ा भी आई हूँ मेरे तो अंदराज हो नहीं रहा, अंदराज नहीं हो रहा? अंदराज ही नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं आप? बस रेंट पे रह रहे हैं, पर ये अंदराज नहीं करते। जितनी दफ़ा भी आई है कह रहे हो जाएगा, पर होता नहीं है। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त हमारा जो है वो बातचीत करने का सिलसिला जारी है, और इनका कहना है कि कुछ हमारे साथ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद थी जो कह रही थी कि हम शुगर की पेशेंट हैं और हम सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं, और इसमें अगर मैंने जहाँ तक पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो ज़्यादा तादाद उन ख़वातीन की है जो काफ़ी एज्ड हैं, और इतने ठंड के माहौल में और इतनी सर्दी में जो है वो खुले आसमान तले उनका खड़े होना, बैठना या इंतज़ार करना, ये फ़िज़िकल इंसान के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, हमारे बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद ख़वातीन से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो ख़वातीन कुछ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं आप कितने बजे सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर आपको? भाई को सौंदा ही नहीं आया। नहीं, कितने बजे आप यहाँ पे आई थी? भाई 6 बजे आए हैं। 6 बजे के, सुबह 6 बजे? हाँ जी। क्या क्या आपने अपना कोई टोकन वगैरह किया? आप रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं या? रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं अंदर से? कहते हैं अभी नहीं। मैनेजमेंट से कोई बात हुई या जो अंदर इंतजाम? अभी अंदर जाने नहीं दे रहे। अच्छा, जो उम्र रसीदा ख़वातीन हैं उनको अंदर नहीं बैठने दे रहे? नहीं भाई। ठीक है, बातचीत करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। मज़ीद इस वक्त ख़वातीन से हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर जो है वो क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या मसाइल हैं अम्मा जी आपको यहाँ पर, मुझे बताएं। मेरा पुत्र 2 साल आगे मेरा माँ फौत हो गया है, आए मेरे कोल कागर वेला। जी हाँ, मुझे अंदर आपको नहीं बिठाया गया? नहीं, आप सुबह कितने बजे से यहाँ पर आई हुई हैं? 10 बजे, मैं झूठ नहीं बोलना, 8-9 बजे माई में। अच्छा, 8-9 बजे की आप यहाँ पर आई हुई हैं, ठंड में बैठी हैं? तो फिर की करियो, नहीं सोते नहीं, उनको जो हुकूमत ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना कि जो बूढ़ी ख़वातीन है उनको आपने अंदर बिठाना है, कोई इस तरह का आपको अंदर नहीं, इतो गां नहीं जान देने, तो फिर की करियो। आगे भी नहीं जाने दे रहे? कोई कागजात वगैरह लिए हैं आपसे? नहीं, कुछ नहीं करो, ही आए झूठ काली बोली हमने को, इतो ना का बैठ होई बैठ गए। अच्छा, आज आए हैं या पहले? जी आए हैं, पहले झूठ नहीं पाई बोलना। ठीक है, ये उम्र रसीदा ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी और इनका कहना था कि हम पहले आज आए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो है हम बातचीत का सिलसिला अपना जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मा जी, मुझे बताएं किस टाइम की आप यहाँ पर आई हुई हैं? मैं 8 बजे की। 8 बजे की ठंड में? हाँ जी। मैं ID कार्ड ले लिया इन्होंने। ID कार्ड ले लिया है? कोई बातचीत की है आपसे? नहीं, ID कार्ड ही दिया अभी। अच्छा, ख़वातीन यहाँ पर हमें कह रही हैं कि मैनेजमेंट जो इंतज़ामिया है उसका जो है वो रवैया सही नहीं है, जो है वो बड़ी सख्त ज़बान के साथ जो है वो बूढ़ी ख़वातीन के साथ भी बातचीत करते हैं। ये ठीक बात कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही करते हैं? ठीक है, यहाँ पर हमारी जितनी भी ख़वातीन से बात हो रही है और उनमें से ज़्यादातर का यही कहना है कि बड़े सख्त अल्फाज के साथ जो है वो उम्र रसीदा ख़वातीन से भी बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं मुझे बताएं ज़रा। आपके सामने ही है, जो भी है आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो आप लोगों की आवाज़ को जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाना है ताकि वो अपनी जो गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त करे, और वो अंदर चले गए हैं, जो बैठे हुए थे पुलिस वाले वो अंदर चले गए। नहीं, हम इंशाल्लाह उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, तमीज़ से बोलें बस। हम सुबह से आए हैं, इधर ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं अभी। ये आज आए हैं या पहले भी कई मरतबा आए हैं। अच्छा, हाँ जी। हर दफ़ा इनका ऐसा होता है? नहीं, मैं चली जाती हूँ जब ज़्यादा रश होता है, मैं बैठती नहीं इधर फिर। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिलते हैं, ज़रिए रोज़गार सिर्फ आप यही है आपका या कोई और भी? नहीं, यही है और कोई भी नहीं है। मियाँ काम करते हैं बस, और ये मिल रहे हैं पैसे, इनकी बड़ी मेहरबानी है।
ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ایک طرف تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ یہ پیسے دے رہی ہیں, لیکن ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے, جو انتظامیہ ہے, ان کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہے. السلام علیکم جی. صبح کتنے بجے سے آئی ہوئی ہیں آپ یہاں پر؟ بھائی میں لیٹ ہی آئی ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہے وہ ہم بات چیت کے سلسلے کو اپنے کو جو ہے وہ مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم کیا مسائل ہیں؟ صبح کتنے بجے آپ یہاں پر آئی ہوئی؟ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾ. نہیں رجسٹریشن کے لیے؟ ہاں جی. کیا آپ کو اندر آپ کے جو ڈاکومنٹیشنز ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس ہیں, کارڈ وغیرہ وہ لیے گئے ہیں آپ کو اندر؟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ. صبح سے ادھر ہی بیٹھے ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ. ہیں؟ اندر جو انتظامیہ ہے, جو مینجمنٹ ہے, ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ. اچھا, بزرگ خواتین جو ظاہری سی بات ہے ان کے لیے تو یہ جو موسم ہے وہ اس ٹھنڈے ماحول میں آنے کا ہی نہیں ہے. ਪਈਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਆਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਾਵਾ. حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ ਹਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਕਰਨ. ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੋੜੋ. پرچی سسٹم اندر چل رہا ہے کہ اگر کوئی سفارش کروا کے آ رہا ہے تو اس کو جانا ہے؟ ਨਹੀਂ سفارش ਅਸੀਂ ਕੋਈ نہیں کرائی ਵੀਰੇ. نہیں, جو باقی اب آپ نے ایسا کوئی دیکھا ہے؟ نہیں. اچھا, بات ہم کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کوئی پرچی سسٹم چل رہا ہے اندر؟ ابھی تو صبح کے آئے ہیں, کوئی سسٹم نہیں چل رہا, بس یہی بیٹھے ہوئے ہیں, کارڈ دے دیا بس. سفارش وغیرہ اندر چل رہی ہے, کوئی بڑھیاں آتی ہیں گڈی پہ, موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی 10 آ گئی, 20 آ گئی. اچھا ناظرین, صبح کے بیٹھے آکڑ گئے ہیں ادھر ہی. خواتین کا کہنا ہے کہ ہم صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور کچھ خواتین آتی ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی پرچی یا اس طرح کی وہ کسی سے بات کروا دیتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ اندر جانے دیا جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اندر جو مینجمنٹ ہے ان سے آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کی کہ حکومت نے یہ واضح طور پر آپ کو کہا ہے کہ جو عمر رسیدہ خواتین ہیں, جو 60 سال سے زائد عمر کی خواتین ہیں, ان کے اندر بیٹھنے کے لیے آپ جگہ بنائیں گے؟ حالانکہ ابھی ہم نے جو چیک کیا ہے وہاں پہ چیئرز فری پڑی ہیں, خالی پڑی ہیں, لیکن وہاں ایسے ہی بیٹھی ہیں ساری, بزرگ سیانی جو بھی سب ایسے ہی بیٹھی ہیں سردی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایسے سردی پہ ایسے ہی بیٹھی ہیں سردی کے. ہم بھی صبح 8 بجے کے آئے ہیں, ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو کوئی ابھی پرچی پڑی نہ کچھ ناتی کارڈ لیا, اگر اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, خواتین کا کہنا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ بدتمیزی سے بات کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرچی سسٹم بڑے اچھے انداز سے چل رہا ہے اور جو دیگر ان کے ہیں, مطلب کہ اگر کوئی سفارشی آ جاتا ہے, سفارش لے کر آ جاتا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ سن لی جاتی ہے. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مزید اس وقت خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اماں جی, مجھے بتائیں کتنے بجے کی آئی ہوئی ہیں؟ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ صبح 5 بجے. ہاں جی, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਜ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ. ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ نہیں. وہ مینجمنٹ کو آپ نے کہا نہیں ہے کہ جو کم از کم ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ, ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਲੈਣ 'ਚ 20 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ہم آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ایک طویل لائن ہے جو اس طرف کمرے سے اس سائڈ پہ جو ہے وہ گھوم کے جاتی ہے اور یہاں پر حکومت سے ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਤਾਰਨ. ٹھیک ہے. ناظرین, اس وقت جو ہے وہ بات چیت کرنے کا ہمارا خواتین کے ساتھ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید خواتین سے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس شدید سردی اور دھند میں وہ کتنے بجے کی یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور کتنے بجے سے یہاں پر جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم جی. بتائیں اماں جی, کس ٹائم سے آپ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں؟ ہم صبح سے آئے ہیں. صبح کتنے بجے سے؟ 5 بجے سے. صبح 5 بجے سے. جی. تو کیا آپ کے کوئی کارڈ وغیرہ لیے گئے ہیں؟ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੈਗੇ. تو کسی سے بات کی ہے آپ نے؟ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾ. اچھا, جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کے لیے اندر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے, حکومت نے ان کو کہا ہوا ہے, آپ کو یا کسی اور کو اندر نہیں جانے دے رہے بیٹھنے؟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਉਹ ਬਿਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ نہیں ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ. نہیں جانے دے رہے, ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ نہیں ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. اس سائڈ پہ جانے نہیں دے رہے ہیں. نہیں, ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ بس. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بتائیں کہ کیا کیا مسائل کا سامنا جو ہے یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے جو خواتین آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین, ہمارا جو ہے وہ بات چیت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جی ناظرین, اور ہمارے ساتھ اس وقت خواتین موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی.
वालेकुम सलाम। क्या मसाइल हैं आपको? कितने बजे से आप सुबह यहाँ पर आई? सुबह के आए हैं भाई, सुबह दे आए हैं ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਲ। नहीं, क्या कह रहे हैं? कोई आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आई हैं? हाँ जी। तो आपसे कोई कार्ड वगैरह लिया गया? नहीं, कोई नहीं। नहीं लिया गया? नहीं। अच्छा, तो आपको पहले भी आई हैं या सिर्फ आज पहले? भी आए हैं, अगे 2 महीने होए उदों भी आए हैं, हुण भी आए हैं, हुण भी आए हैं। आपकी बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, कोई नहीं सुनते। अच्छा, उम्र रसीदा ख़वातीन को अंदर बिठाने के कहा गया है, अंदर उनके लिए जगह बनाने का कहा गया है, उनके लिए अलहदा से एक जगह सेट करने का कहा गया है, तो इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया? भाई वड़न देंदे तो की करना। अमले का रवैया कैसा है? भाई इदां ही गाली पैंदे आ, जदों कोई गल करो उदों ही गल पैंदे आ। ठीक है, ख़वातीन का यही कहना है कि हम जब भी उनसे जो है वो बात करते हैं, जब भी हम उनसे कोई चीज़ पूछते हैं या कोई गाइडलाइन लेते हैं तो वो आगे से जो है वो हम पर गुस्से हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। कितने बजे से आई हुई हैं आप सुबह यहाँ पर? 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੋਟੀ। अच्छा, अमले का रवैया कैसा है? कोई आपसे बातचीत सही तरीके से करते हैं? ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਟ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਬੁੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨਾ। कोई आपको जवाब उन्होंने दिया हो या आपने उनसे बात करने की कोशिश? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ आगे। आप बताएं कि कितने बजे यहाँ पर आप आई हैं और क्या क्या मसाइल? मैं पहली दफ़ा आई हूँ। हाँ जी। कितने बजे आई हैं? 11 बजे। 11 बजे। कोई आया है अमले का बंदा? नहीं आया? नहीं। ठीक है नाज़रीन, ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है जो इस वक्त बयान नहीं की जा सकती क्योंकि शदीद ठंड है और जमा देने वाली सर्दी है, और इस जमा देने वाली सर्दी में भी उम्र रसीदा ख़वातीन जिनको अब घर आराम की ज़रूरत है, इस सर्दी के माहौल में वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और जबकि हुकूमत ने ये कहा हुआ है मैनेजमेंट को कि जहाँ भी इस तरह का इंतज़ाम हो वहाँ पर आप कम अज़ कम जो उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, जो 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हैं, इनके लिए आप अलग जगह बनाएंगे। और वो भी एक ऐसा इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है कि शदीद ठंड है, और शदीद ठंड में भी इस वक्त लाइन्स है बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन हैं और बूढ़ी ख़वातीन हैं जो बाहर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने बजे से आप यहाँ पर आई हुई हैं? मैं 8:30। 8:30 सुबह 8:30। क्या क्या मसाइल हैं? कोई अमले ने आपकी बातचीत सुनी है? कोई आपसे? कोई बात नहीं सुनी, ऐसे ही बैठे हुए हैं। सुबह से ऐसे ही बैठे? हाँ जी, सर्दी लग रही, बच्चियाँ जवान अकेली घर छोड़ कर आई हुई हूँ। अच्छा, कोई ज़रिया रोज़गार और भी है आपके? नहीं भाई, अकेला शोहर है, ना बेटा है, बेटियाँ हैं। ठीक है, खातून हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना है कि मेरा जो है वो शौहर है, मेरे बेटे नहीं हैं, और मैं सुबह से यहाँ पर आई हुई हूँ। हमें जो है वो हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, लेकिन हमें जिस तर्ज से पैसे दिए जाते हैं या जिस अमल से हमें गुजर कर जो है वो पैसे मिलते हैं वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दे है। तो हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ जी भाई, कि जो अगर बाहर औरतें बैठी उनके साथ वो तलों आके बातचीत करें, बताएं कि मिलने भी हैं कि नहीं, फारग करें नहीं तो। अच्छा, इससे पहले भी आप आती रही हैं या? मैं पहली दफ़ा आई हूँ, पहले हमारे मोहल्ले में देते थे दुकान पे, अब नहीं दे रहे, अब कहते वहाँ दोबारा जाएं। अच्छा, सुबह से आप ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मौजूद हैं, कोई सिफारिश वाला सिस्टम आपने देखा है? कोई भी नहीं, सिफारिश नहीं चलती? नहीं, ऐसे खामोशी से सारी औरतें बैठी हुई हैं। अच्छा, नहीं, जो आती हैं बाज़ औक़ात के किसी की सिफारिश लेकर या किसी की को कॉल, इस तरह का कोई वाक़या? नहीं भाई, कोई ऐसा वाक़या नहीं है। ठीक है, ख़वातीन से जो है वो नाज़रीन हमारे बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है, हमारा जो है वो बातचीत करने का सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए अमले के हवाले से तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमले का जो ख़वातीन के साथ रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। जिन ख़वातीन से भी हमारी बात हुई है उनकी तरफ से यही एतराज़ सामने आया है कि हमसे जब भी बात करते हैं या हम उनसे कोई गाइडलाइन लेना की कोशिश करते हैं तो हमें जो है वो आगे धक्कम पेल ही मिलती है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मसाइल हैं? शदीद सर्दी में खड़ी हैं आप, कोई बैठने की जगह? 7 ਵਜੇ ਆਈ ਦੀ मैं तो फल दी मरीज मियाँ मेरा था सुनते नहीं गल कोई बात नहीं सुनते आप? नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि सुबह इतनी ठंड में आई हैं तो अभी इंतज़ामिया की तरफ से जो आप लोगों के साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है इस पर? इस तरह नहीं है जिदा बहावा। अच्छा, इससे बदल कोई नहीं होया है। ठीक है नाज़रीन, ख़वातीन से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। एक और हमारे साथ खातून मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। ये बताएं कि जिस तरह हम भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अमला जो है वो ख़वातीन के साथ, उम्र रसीदा ख़वातीन के साथ इंतहाई सख्त ज़बान में बातचीत कर रहा है। असी गरीब पहला गुन्ने हैं, की करिए
ना कोई आसरा बनया खड़ा न कुछ, ना ही गैस है ना ही कुछ है न ला। नहीं, बैठने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई? ये कहना इस्टाम वाले न थोड़ी सी ज़मीन है। ठीक है नाज़रीन, हमारा जो है वो बातचीत करने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि क्या क्या मसाइल का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है? ठीक है, सर वो यही कह रहे हैं कि लाइन में लगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो बस कुछ ख़वातीन हैं वो भी आगे से बहस मुबासा करती हैं और लाइन में नहीं लगती ना जब, तो फिर धक्म पहल होती है। वैसे नहीं रवैया, अमले का रवैया कैसे है? बस रवैया तो ऐसे ही है, जब कोई आगे से बहस करता है फिर वो भी आगे से बदतमीजी करते हैं। कुछ का ठीक है, कुछ का ऐसे ही है। ठीक है, उम्र रसीदा ख़वातीन जो हैं उनके साथ किस तरह? उनको तो वो लेके जा रहे हैं, जो बच्चों वाली हैं उनको भी पहले लेके जा रहे हैं। जो गलत बात है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों वाली हैं उनको भी पहले लेके जा रहे हैं, जो माजूर हैं जो उम्र रसीदा है उनको भी पहले लेके जा रहे हैं वो। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मज़ीद ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद ख़वातीन से जो है वो हम बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि इस मामले पर जो है वो क्या कहती हैं, सुबह कितने बजे से वो यहाँ पर आई हुई हैं और किन किन मसाइल का उनको सामना है और क्या जो हुकूमत ने जो हिदायत दी हैं उसके मुताबिक जो है वो ख़वातीन को सहूलियात फराम की जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। अम्मा जी, कितने बजे से सुबह आप यहाँ पर आई हुई? सुबह 6 बजे आए। इतनी सर्दी में? सर्दी तो बहुत सी। बैठने की जगह बस इस तरह ही है। ये नीचे बैठे हुए हैं आप लोग? हाँ जी, वो पोनिया पे बैठे। ये आज आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? नहीं, आज ही आए थे, आज ही आए। ठीक है, और रवैया कैसे, अमले का बिहेव ठीक है आप लोगों के साथ? अल्लाह का शुक्र है, जो भी हो। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ख़वातीन हैं और उनका कहना है कि अब जैसा भी है हमें जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और मज़ीद जो है हमारे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि जैसा हम देख रहे हैं कि बैठने के लिए कोई ख़वातीन के लिए जगह नहीं बनाई गई, जो उम्र रसीदा ख़वातीन हैं उनके लिए, तो क्या कहेंगे इस मामले पर? ये बहुत बुरा कर रहे हैं औरतों के साथ, ठीक है ना। अगर आप ना होते तो इसने आज शनाख्ती कार्ड भी नहीं पकड़ने थे, धक्के देते हैं, बहुत मजबूर करते हैं औरतों को। जो मजबूर है, लाचार है, उसे तो अंदर जाने दे, नहीं जाने देते। इतनी चेयर लगी हुई है, अंदर नहीं जाने देते किसी भी, ठीक है ना। ठीक है, इतनी सर्दी में बिठाया हुआ है। अच्छा, ये हमारे आने के बाद ही इन्होंने जो है आप लोगों से वो कार्ड पकड़ना शुरू किए हैं और ख़वातीन को? जी, आने के बाद ही शुरू की है। ठीक है, और इससे पहले चूँकि हमने जब यहाँ पर आए तो हमने अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई ख़वातीन मौजूद नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ख़वातीन को बिठाया गया है, तो ये इनका रूटीन का यही काम है? जब आप आते हैं इसी तरह इसका रोज़ का मामूल यही है, ऐसे ही करते हैं ये औरतों के साथ, कभी अच्छा बिहेव नहीं करते, ठीक है ना। कुछ औरतों की भी गलती होती है, इनकी बात नहीं मानती, कुछ इनकी भी गलती होती है, यही बात होती है। अच्छा, इनका ओवरऑल रवैया कैसा है? बहुत बुरा है। अच्छा, सही नहीं है इनका रवैया? नहीं सही। अच्छा, सिफारिश यहाँ पर चल जाती है? चलती है, हाँ जी चलती है। अगर पैसे भी देते हो तो कोई 500 फड़ा दे, उसे अंदर जाने देते हैं। अच्छा। क्या आप जाओ। अच्छा। ठीक है ना। अगर कोई औरत मजबूर है, वो कह रही है आप ये सिफारिश गई है, कहते जाना है, पैसे बंद करवा देंगे हम, आप क्या करोगे? अच्छा, ऐसे करते हैं। इतनी धमकियाँ लगाते जी, हैं? बहुत धमकियाँ लगाते हैं। ठीक है, ख़वातीन का कहना है कि धमकियाँ में लगाते हैं और कहते हैं कि हमारी जो है इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो नहीं करेंगी, या इस तरह की जो उनकी कुछ डिमांड्स हैं, जिस तरह भी इन्होंने बताया कि वो पैसे ले लेते हैं हमसे, जो है वो पैसे तलब किए जाते हैं, अगर दे देते हैं तो उनका काम जो है वो फिर जल्दी हो जाता है। अच्छा, मुझे साथ में ज़रा ये भी बताएं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं सुबह से, ये डेली आप लोग यहाँ पर सुबह आते हैं और आपसे कार्ड नहीं लिए जाते और फिर आप वापस चले जाते हैं शाम को थक हार के, या ये फिर आज ही सारा हुआ है? नहीं भाई, तकरीबन हफ्ता हो गया है, आज कार्ड पकड़ा इसने हमारा। 1 हफ्ते बाद? हाँ जी, 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता हो गया, वापस रोजाना जाते हैं। यानी ओवरऑल कारकर्दगी पर आप मुतमईन नहीं है, ये जो अमला है यहाँ पर? नहीं, हम मुतमईन नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है, महंगाई का दौर में जो है वो इन हालात में एक आम शहरी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो फिर यही ज़रिया आमदन है या कोई और भी? नहीं भाई, और भी आमदन है, लेकिन इनका ये तरीका बहुत गलत है। पहले दुकानों में आते थे, कहीं भी मिल जाते थे पैसे, अब इसने एक अमला बना दिया, कभी कॉलेज में, स्कूल में, ग्राउंड में, तो इतना नुकसान होता है। कोई औरत मर जाती है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, इस गेट पे कहेंगे उस गेट पे आ जाओ, उस गेट से इस गेट पे आ जाओ, ऐसे ही करते रहते हैं। यानी ये ख़वातीन को तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर ख़वातीन बदतमीजी करती है तो कहते हैं क्या कर लोगे, हम पैसे बंद करवा देंगे। अच्छा, ऐसे मेरे साथ खुद हुआ है। अच्छा, क्या कहा है आपको?
कहते हैं कि पैसे बंद करवा दो, कैसे ले लोगे? हम देंगे तो लेंगे, हम पैसे बंद करवा देंगे आप। ये कैसे बंद करवा सकते हैं पैसे? पैसे तो हुकूमत दे। बात है, आप अगर हकदार हैं, अगर आप हकदार हैं तो कोई आपको जो है वो आपका हक लेने से नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, वो पैसे जो दिए जा रहे हैं वो इनकी तरफ से नहीं दिए जा रहे, बल्कि हुकूमत का ये इकदाम है और हुकूमत जो है वो आपको ये पैसे फराहम कर रही है। तो आपके मामला क्या था, आप ज़रा खुल के हमें वो बताना पसंद करेंगी? मामला ये था भाई, हम कॉलेज रोड पे ना इन लोगों ने हमें बुलाया था, ठीक है। हम उधर पैसे लेने गए थे, 2 गेट है उनके, एक गेट से कहते थे इस गेट पे आ जाओ, जब उस गेट पे औरतें जमा हो जाती थी दूसरे गेट पे चले जाते थे। कुछ औरतों ने गेट तोड़ दिया, ठीक है। इन लोगों ने औरतों को तशद्दुद भी किया, लेकिन तशद्दुद किया जी। 11 भाई भी उधर आए थे, 11 भाई वालों ने बोला कि नेट पे इनकी वीडियो दो, तो मैं बोलने लगी तो सर ने कहा कि कहता कैसे पैसे लोगी, इतना बोल रही हो, हम आपके पैसे बंद करवा देंगे। अच्छा, धमकाते हैं? हाँ जी। मैंने कहा कि चलो करवा दो पैसे बंद, अगर आपकी हिम्मत हो तो पैसे बंद करवा दो। ठीक है। नाज़रीन, ख़वातीन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, उनका कहना था कि हम जो है वो अगर बात करते हैं या इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ बोल लें, लेकिन बाद में हम आपके पैसे बंद करवा देंगे, आपको भुगतना पड़ेगा, और इस तरह की धमकी जो है वो उनको दी जाती है। मज़ीद इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या मसाइल हैं, हमें ज़रा आज खुलकर बताएं ताकि आपकी ये जो आवाज़ हम है वो हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। मैंने 2 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਹਲਕ ਅਟੈਕ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਭੁੱਖੇ। नहीं, ज़रिए रोज़गार कोई और है या ये आपका जो है वो ये इसी से आपको पैसे मिलते हैं? कोई बेटे ਵਿਆਹੇ ਵੱਖ ਬਾਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ वो माली मामलात आपकी नहीं करते? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਪਕਾਉਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ बस वो भी कारोबार होता। आपका जो है वो ज़ाती तौर पर आपका गुज़र बसर जो है वो इन्हीं पैसों पर होता है, और ये भी आपको जो है वो धक्कम पेल और इस तरह के मसाइल सुनने के बाद दिए जाते हैं? हाँ जी, बहुत मजबूर हाँ, बहुत तल्ले मारने, किराए ते रहंदे आ। मेहरबानी है तुहाडी। ठीक है। नाज़रीन, ख़वातीन से जो है वो हमारी बातचीत जो है वो सिलसिला जारी है। आपने ख़ुद ये चीज़ें सुनी हैं कि उनका कहना है कि हम मुसलसल 1 हफ़्ते से यहाँ पर आ रहे हैं और कोई उनकी तरफ से जो है वो ख़ास इक़दाम नहीं उठाया जा रहा, और ये उन्होंने हमें साथ में कहा भी कि ये आज अगर आप आए हैं तो इन्होंने उसके बाद ही जो है वो अमली काम करना जो है वो शुरू किया है, और उन्होंने ख़वातीन से जो है वो कार्ड लेने शुरू किए हैं। और इससे पहले जो है वो ख़वातीन को तंग किया जाता था, उनको धमकाया जाता था, अगर वो बात इनके ख़िलाफ़ जो है वो कहीं बात करते या बोलते तो ये फिर बढ़ चढ़ कर जो है वो सीना तान कर उनको ये कहते कि हमने आपके जो है वो पैसे बंद करवा देने हैं, फिर पैसे आप कहाँ से लेंगे। नाज़रीन, बातचीत करने का सिलसिला हमारा ख़वातीन के साथ जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। और आज का ये जो हमारा एक अहम मामला है, जो अवामी मामला है, जो अवाम का मसला है, और एक छोटी सी रकम के लिए कोई इतनी बड़ी कोई ख़तीर रकम नहीं है जिसके लिए ये ख़वातीन जो है वो यहाँ पर ज़लील और रुस्वा हो रही हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और ख़ातून यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं क्या क्या मसाइल हैं, अमले का रवैया कैसा है, कितने बजे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं? बेटे, यहाँ तक कि लोग ना ये गेट फलांग के अंदर आते हैं, पता नहीं बहुत से लोग इतने मजबूर है कि उनके पास किराया भी नहीं होता, जिनके खामंद नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं। ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा है कि ये सपोर्ट करते हैं, गरीब आवाम को देते हैं, मगर पैसे पीछे से आते हैं, वो कहते हैं आपके पैसे हैं, ये लोग देते नहीं हैं। इंदराज हुआ बहुत सी जगह पे जाते, कहते पैसे आपके आए हुए, ये जी वो उनका वो क्या होता है, बंद है, इसकी मशीन खराब है। ये बताएं, आपको मिले हैं पैसे? पैसे एक मरतबा मिले, 2 साल हो गए इंदराज हुआ, एक मरतबा पैसे मिले, उसके बाद कहते नहीं। 2 साल पहले इंदराज हुआ, एक दफ़ा मिले हैं, लास्ट आपको आखिरी दफ़ा कब मिले थे? ईद से पहले के मिले, छोटी ईद से पहले, रमज़ान से पहले के। हाँ जी। अच्छा, यानी तकरीबन 7.5 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो गुज़र चुका है और अभी तक जो है वो इनको किस्त नहीं मिली है। ये ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनका कहना है कि ज़ाहिर सी बात है, घर के मामलात चलाने होते हैं, घरेलू मामलात जो है वो उनको देखना होता है। हुकूमत का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन जो तरीक़ाकार है उस पर सवालात खड़े होते हैं कि जो देने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ख़वातीन के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि इतनी सर्दी में ख़वातीन के लिए कोई बैठने की जगह ही नहीं बनाई गई। बिल्कुल नहीं, ये इन्होंने कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं किया होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, कोई बीमार है, बुज़ुर्ग अपने बहुत दूर दराज इलाकों से आई हैं, इतना किराया लगा के यहाँ धक्के दे के निकाल देते, आपका नहीं है, आपके आने नहीं है, आप नाअहल है।
जिनके इंदराज हुए हैं पैसे पीछे से आ रहे हैं, ये दे नहीं रहे। अच्छा, जिनके अंदराज हो चुके हैं, जिनके पैसे आ रहे हैं, उनको दे ही नहीं रहे? नहीं, दे भी नहीं रहे, ये नहीं देते पैसे, कहते आप ना है ना। वहाँ पीछे से अंदराज हुए पैसे आए होते, बहुत से लोग कहते जाके वहाँ आगे आगे भेजते रहते, उधर चले जाओ उधर चले जाओ। अच्छा, ये बताएं कि कोई पर्ची का सिस्टम यहाँ पे चलता है, कोई सिफारिश का सिस्टम आपने देखा है यहाँ पे चलता है कि कोई आई हो और उसने कहा हो या फ़ोन करवाया हो या कोई पैसे दिए हो या पैसों की डिमांड की गई हो? ऐसे ही है, बहुत सी इनकी जो ताल्लुकात वाली होती हैं उनको चुप करके अंदर भेज देते हैं। जो बहुत सी इतनी लंबी लाइन में धूप में लोगों के बीपी हाई होते हैं, बीमार हो जाती हैं, कोई बहुत सी ख़वातीन पता नहीं कैसी कैसी बीमारी में होती हैं वो, तो उनको खड़े रखते हैं। जो ताल्लुक वाली होती है उनका आराम से पकड़ा और अंदर। अच्छा, अभी तो चलें ठंड का माहौल है, लेकिन ठंड में भी ज़ाहिर सी बात है बाहर खड़े होना बहुत मुश्किल है, तो गर्मियों में ये इतनी लंबी कतारें और फिर कोई इस तरह टेंट वगैरह या कोई छाँव का सिस्टम ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ से कतार शुरू करते हैं, पीछे से लाते 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 ये जहाँ तक आती है, फिर जो पीछे वाली होती है उनको कब बस गोलमोल कर देते हैं, ऐसे करते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन से हमने आज बात की और इसमें आपने देखा कि ख़वातीन हमसे बात करते हुए जो है वो आप दीदा भी हो गई और उनका कहना यही था कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, हम हुकूमत के इस इक़दाम की जो है वो उनको सराहते हैं, लेकिन जो हिकमत अमली बनाई गई है, जो तरीक़ाकार बनाया गया है वो गलत है। उसमें जो है वो ख़वातीन, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उनको जो है वो धक्के दिए जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। जो अमला है वो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है या ज़बान इस्तेमाल करता है वो ख़वातीन के लिए बहुत सख्त ज़बान होती है। इसके साथ ही हमारी जितनी ख़वातीन से बात हुई उनमें से चंद ने ये भी कहा कि आप आज आए हैं तभी इन्होंने जो है वो हमसे कार्ड पकड़े हैं, अदरवाइज़ ये रेगुलर लगातार हफ्ते से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी जो है वो हम सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं। सुबह आते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, ठंड में बैठे रहते हैं, ना उम्मीद होकर घर वापस चले जाते हैं। अमले की तरफ से हमें जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। नाज़रीन, अब हुकूमत को यहाँ समझना चाहिए कि अगर आपने गरीब आवाम की जो है वो उनको ज़रा मजबूत करने के लिए फ़ाइनेंशियली एक इक़दाम उठाया है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको बेहतरीन तरीके से जो है वो सर अंजाम दें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।